Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. I hope you all are doing well. Today we are going to start our next subject, which is company law. First of all, we will discuss the syllabus of company law, which we will cover in this entire series. Company, introduction, meaning, characteristics and types of companies, conversion of private into public company, promotion and incorporation of companies, promoters, duty, liability and position, company and pre-incorporation contracts. Next unit is Memorandum of Association, which includes clauses and procedure for alteration and doctrine of ultra vires. Next unit is Articles of Association, which includes contents and alteration, adoption of Table A, doctrine of indoor management. Next unit is Prospectus, which includes the topics parts of SEBI, means Security Exchange Board of India, contents and formalities, misrepresentation and remedies for misrepresentations. Next unit is share capital, which includes issue and allotment of shares and debentures, share certificate and share warrant, buyback of shares, membership, borrowing powers, mortgage and charges. Next unit is directors, which includes appointment, powers and legal position, company meetings, kinds, quorum, voting, resolutions and minutes. Next one is reconstruction and amalgamation. And the last one is prevention of operation and mismanagement and winding up of companies. Topics to be covered in this lecture are: first one is introduction about company, second, meaning of company, third one is definition of company, and fourth and last one is characteristics, features or we can say nature of company. Let's begin with our today's topic, introduction. Just as the partnership organization came into existence to remove the weaknesses of the sole trade, similarly, a new business organization was born in the form of company organization with a view to eliminating the drawbacks of partnership organization. It means जिस तरह पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया था, सोल ट्रेड की, सोल प्रोप्राइटरशिप की वीकनेसेस को रिमूव करने के लिए, इन द सेम मैनर एक न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने भी जन्म लिया है, दैट इज कंपनी ऑर्गेनाइजेशन. और जिसका मेन मोटिव क्या था? टू एलिमिनेट द ड्रॉबैक्स ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन. बोथ द सोल ट्रेड एंड द पार्टनरशिप बिजनेस suffer from the defects of shortage of capital, unlimited liability, lack of managerial capability, lack of stability, etc. दोनों ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सोल ट्रेड और पार्टनरशिप जो बिजनेस था वो किस चीज़ से सफ़र कर रहे थे? शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, मीन्स उनके पास कैपिटल की क्या थी? शॉर्टेज थी, स्कार्सिटी थी. एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी. जो सोल प्रोप्राइटर होता था, मींस ऑनर जो था सोल ट्रेड में, या फिर जो पार्टनरशिप फर्म के जो मेंबर्स होते थे, पार्टनर्स होते थे, उनकी लायबिलिटी कैसी थी? अनलिमिटेड. मींस उनके बिजनेस के जो भी आपके डेट्स थे या कोई आउटसाइड पेमेंट करनी थी, उनको पे करने के लिए मेंबर्स की पर्सनल एसेट्स भी, पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज हो जाती थी. ठीक है. लैक ऑफ मैनेजरियल कैपेबिलिटी, उनके पास मैनेजरियल
अपनी कैपेबिलिटी ही नहीं थी, या फिर बहुत कम थी हम बोल सकते हैं। लैक ऑफ स्टेबिलिटी, देखो सोल ट्रेड है, अगर उसको कोई इमरजेंसी है या कोई अर्जेंट वर्क है तो उसे अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ता था कुछ टाइम के लिए, राइट। या फिर अगर पार्टनरशिप की बात करें, पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी मेंबर की या फिर पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो बाकी जो बिजनेस था वो भी आपको कुछ समय के लिए क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, ठीक है। मीन्स अफेक्ट होता है हम बोल सकते हैं। तो स्टेबिलिटी नहीं होती हमारी किस चीज़ में, सोल ट्रेड में और पार्टनरशिप बिजनेस में, विच हैपन टू बी द हर्डल्स इन अ बिग साइज्ड बिजनेस ऑल्सो, जो कि क्या होती है, हर्डल्स होती हैं, ऑब्स्टेकल्स होती हैं बिग साइज बिजनेस के अंदर भी, राइट। द नीड फॉर द कंपनीज केम टू बी फेल्ट टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस। तो ये जो हमने अभी पढ़े हैं कुछ लिमिटेशंस किस चीज़ की, सोल ट्रेड और पार्टनरशिप की। यहाँ पे पढ़ा हमने शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लैक ऑफ मैनेजरियल कैपेबिलिटी और लैक ऑफ स्टेबिलिटी। ये क्या थी, सोल ट्रेड और पार्टनरशिप बिजनेस की लिमिटेशंस हैं। इनको ओवरकम करने के लिए हमें नीड अराइज हुई है किस चीज़ की, कंपनीज की, ठीक है। द कैपिटल ऑफ द कंपनीज इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉल अमाउंट एज अ रिजल्ट ऑफ विच एवरी रिच और पुअर हैज़ द कैपेसिटी टू बाय देम। जो कंपनीज की कैपिटल होती है वो डिवाइडेड है किस चीज़ में, शेयर्स ऑफ स्मॉल अमाउंट, ठीक है। शेयर्स में डिवाइडेड है, वो भी छोटे छोटे अमाउंट्स में, और जिसका रिजल्ट क्या होता है, हर पर्सन वेदर दे आर रिच और पुअर हैज़ द कैपेसिटी टू बाय देम, उनके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो बाय कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखो लार्ज अमाउंट की डिनोमिनेशंस के शेयर्स होंगे तो ओनली रिच कैन अफोर्ड देम, पुअर अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। लेकिन कंपनीज में ऐसा नहीं होता, कंपनीज की जो कैपिटल है वो डिवाइडेड है किस चीज़ में, इनटू द शेयर्स ऑफ स्मॉल अमाउंट। द अट्रैक्शन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑल्सो ड्रॉज पीपल टूवर्ड्स कंपनी। कंपनी में क्या होता है, जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है टूवर्ड्स कंपनीज। मोर ओवर द क्वालिटी ऑफ स्टेबिलिटी इन अ कंपनी एक्सरसाइजेज अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन फॉर द एक्सपीरियंस्ड एंड एफिशिएंट मैनेजर्स। और कंपनी क्या होती है, स्टेबल, मीन्स हम नॉर्मली एक सेइंग भी है हमारी, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। मेंबर्स आएंगे मेंबर्स जाएंगे, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी, कंपनी कभी भी रुकती नहीं है, ठीक है। किसी भी मेंबर की डेथ हो, कोई न्यू एंटर करे, कंपनी को कोई अफेक्ट नहीं है, वो नॉर्मल अपनी कोर्स में क्या करेगी, अपने बिजनेस को रन करेगी। तो जो ये क्वालिटी है स्टेबिलिटी की कंपनी की, ये भी किस चीज़ का काम करती है, एज अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन, किसको, फॉर द एक्सपीरियंस्ड एंड एफिशिएंट मैनेजर्स। In this way, all the limitations of the sole trade and partnership are removed and all the increasing demands of modern business are satisfied through the medium of a company organization. तो इस तरह क्या होता है, जितनी भी हमने लिमिटेशंस पढ़ी हैं सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप्स की, ठीक है, वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती हैं। और जो भी आपकी इंक्रीजिंग डिमांड्स हैं मॉडर्न बिजनेस की, और वो भी सेटिस्फाइड हो जाती हैं विद द मीडियम ऑफ अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ कंपनी। अ कंपनी इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज विलिंगली एस्टैब्लिश्ड बाय सम पर्सन्स और फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनी क्या होती है, एक ऐसा फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो कि विलिंगली इस्टेब्लिश्ड किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, और जिसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग। और ये किस चीज़ के अंदर किया जाता है, कंपनीज एक्ट के अंदर होता है ये सारा प्रोसीजर। मैनी पर्सन्स जॉइंटली इन्वेस्ट कैपिटल इन अ कंपनी एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जॉइंटली इन्वेस्ट करते हैं अपनी कैपिटल को, अपने फंड्स को किस चीज़ में, कंपनी में, और उससे हम क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी। इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स विच मीन्स दैट इट्स शेयर्स कैन बी जनरली बॉट एंड सोल्ड। कंपनी की जो कैपिटल होती है वो डिवाइडेड है किस चीज़ में, इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, मीन्स आप उन शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो, मूवेबल है वो आपके शेयर्स।
जिसका मतलब क्या है, आप उनको इजीली सेल भी कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो. कैन बी जनरली बॉट एंड सोल्ड. लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड. कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है. मीन्स मेंबर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को, पर्सनल एसेट्स को यूज नहीं करना पड़ता टू पे द डेट्स और लायबिलिटी फॉर अ कंपनी. द बिजनेस ऑफ अ कंपनी इज स्टेबल एंड इट्स बिजनेस इज रन थ्रू अ कॉमन सील. और जो कंपनी का बिजनेस होता है वो कैसा है, हमारा स्टेबल होता है. मीन्स कोई मेंबर एंटर करे, कोई मेंबर ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को छोड़कर जाए, कंपनी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता. दैट विल बी योर स्टेबल. और जो कंपनी का बिजनेस है वो रन किया जाता है थ्रू द कॉमन सील. कॉमन सील क्या होता है, कि स्टैम्प की तरह काम करता है. देखो, कंपनी को हम मानते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, राइट. तो वो खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन होने के नाते कंपनी खुद तो हैंड रिटन सिग्नेचर नहीं करेगी. तो वो क्या करती है, अपने डॉक्यूमेंट्स में कॉमन सील मीन्स एक स्टैंप लगाती है. व्हाट इज कंपनी? दैट ग्रुप ऑफ पीपल विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट whose creation is due to special purpose. The liability of members is generally limited, whose existence is separate from its members and is continuous or perpetual, and which has a common seal is called a company. कंपनी क्या है, एक ऐसा ग्रुप है लोगों का जो इनकॉर्पोरेटेड है अंडर कंपनीज एक्ट. इनकॉर्पोरेटेड है, रजिस्टर्ड है, इस्टेब्लिश्ड है, किसके अंडर, कंपनीज एक्ट के अंदर. और वो क्यों क्रिएट हुई है, कुछ स्पेशल पर्पस के कारण. हुज क्रिएशन इज ड्यू टू अ स्पेशल पर्पस. और उनकी लायबिलिटीज, कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, जनरली लिमिटेड होती है. हुज एग्जिस्टेंस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. मीन्स कंपनी की आइडेंटिटी उसके मेंबर्स की आइडेंटिटी से क्या होती है, सेपरेट होती है. and is continuous and perpetual and which has a common seal. और कंपनी का क्या होता है, परपीचुअल सक्सेशन होता है. वही बात, कोई एंटर करेगा, कोई लीव करेगा ऑर्गेनाइजेशन को आपकी, तो कंपनी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता. कंपनी जैसे अपने एक्टिविटीज ऑपरेशंस कर रही थी सिमिलर वे में अपना वो करती रहेगी. और कंपनी के पास क्या होती है, एक कॉमन सील. Now moving towards the definition. First one is, according to Professor L.H. Haney, company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and common seal. प्रोफेसर L.H. हैनी के अकॉर्डिंग कंपनी क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे क्रिएट किया है लॉ ने, जिसकी क्या होती है, सेपरेट एंटिटी होती है. मीन्स कंपनी की और जो उनके मेंबर्स हैं उन दोनों की आइडेंटिटी कैसी होती है, सेपरेट होती है. विद अ परपीचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील. अब परपीचुअल सक्सेशन हम बार बार रिपीट कर चुके हैं वर्ड. वही बात है, मेंबर्स में को, मेंबर्स में कम, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर. ठीक है. और कॉमन सील क्या होती है, कंपनी का एक स्टैंप की तरह काम करेगा. जहाँ भी कंपनी को सिग्नेचर्स करने होते हैं, हैंड रिटन सिग्नेचर नहीं होते, वहाँ पर आपकी क्या लगती है, कॉमन सील लगती है. Second definition is, according to Justice James, a company is an association of persons united for a common purpose. Justice James के अकॉर्डिंग कंपनी क्या है, कंपनी एक एसोसिएशन है पर्सन्स की जो कि यूनाइटेड है, इकट्ठे हुए हैं किसके लिए, कुछ कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए. राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी. If we analyze the above definitions, we find that the main characteristics of a company are as follows. कुछ definitions के basis पर हमने कंपनी की characteristics को क्या किया है, analyze किया है, जो कि क्या है. First one is incorporated association. कंपनी क्या है, एक incorporated association है. Second, कंपनी को हम क्या मानते हैं, artificial person. Third one is separate legal entity. Fourth, perpetual succession. Fifth one is common seal. Sixth, limited liability. Seventh, number of members. Eighth,
representative management. 9th, transferability of shares. 10th, separation of ownership and management. 11th, risk bearing. 12th, termination of existence. And the last one is company is not a citizen. Now we will discuss these points in detail. First point is incorporated association. कंपनी क्या है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है. एक एसोसिएशन है जो कि कैसी है? इनकॉर्पोरेटेड, राइट. अ कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड कैन एग्जिस्ट टिल सच टाइम एज इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ. कंपनी एस्टैब्लिश्ड होती है किसके द्वारा? लॉ के द्वारा. और वो तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक रिकॉग्नाइज होती है लॉ के द्वारा. ठीक है, मीन्स कंपनी एस्टैब्लिश्ड भी लॉ के साथ होती है, लॉ के द्वारा होती है, और टर्मिनेट भी कंपनी कब होती है? जब लॉ को लगता है, राइट. अंडर द कंपनीज एक्ट इट इज नेसेसरी फॉर अ कंपनी दैट इट इज फॉर्म्ड टू बी रजिस्टर्ड, दैट इज इट नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड. कंपनीज एक्ट के अंडर ये मैंडेटरी है, नेसेसरी है किसी भी कंपनी के लिए कि वो क्या हो? रजिस्टर्ड हो. मीन्स उनको इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए. Any organization or institution which is established with the objective of earning a profit and which has more than 10 members in the case of banking and 20 members in case of any other business activity needs by law to be registered. ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई एसोसिएशन जो established हुआ था किस मोटिव से? To earn the profit. ठीक है, या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन जिसके मोर देन 10 मेंबर्स हैं इन द केस ऑफ बैंकिंग. बैंकिंग के केस में अगर 10 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, या फिर 20 मेंबर्स हैं इन केस ऑफ एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी. उन सब को रजिस्टर्ड करवाना बहुत ही ज़रूरी है, नेसेसरी है, और वी कैन से मैंडेटरी है बाय द लॉ, लॉ के द्वारा. ठीक है, क्या पढ़ा हमने इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन में? कि कंपनी का जो इस्टेब्लिशमेंट है और टर्मिनेशन है वो किसके द्वारा होता है? लॉ के द्वारा. और कंपनीज एक्ट के अंडर ये नेसेसरी है कि हर कंपनी क्या हो? रजिस्टर्ड हो, इनकॉर्पोरेटेड हो. या फिर हम बोल सकते हैं अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन जो इस्टेब्लिश्ड हुई है किस ऑब्जेक्टिव से? अर्निंग अ प्रॉफिट. या फिर कोई ऐसी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन जिसके मेंबर्स मोर देन 10 हैं इन केस ऑफ बैंकिंग एंड 20 मेंबर्स हैं इन केस ऑफ एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी, उनको क्या करवाना पड़ेगा? अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा. गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट इज आर्टिफिशियल पर्सन. Another important characteristic of a company is that it is an artificial person created by law. Another important characteristic कंपनी की क्या है? कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे किसने क्रिएट किया है? लॉ ने. क्रिएटेड बाय लॉ. It is called an artificial person because its birth is not a natural birth. अब कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा जाता है? रीज़न क्या है इसके पीछे? क्योंकि इसका बर्थ नेचुरल बर्थ नहीं होता. इट इज़ इनविजिबल, आप इसको देख नहीं सकते. इंटैंजिबल एंड इमोर्टल आर्टिफिशियल पर्सन. So long as it is not wound up, that has an identity only in the eyes of law. कंपनी क्या है? इनविजिबल है, आप इसको देख नहीं सकते हो. ठीक है, कंपनी एक पर्सन थोड़ी है जिसे आप इजीली कहोगे कि ये कंपनी है, राइट. इनटेंजिबल है, आप इसको कंपनी वर्ड को छू नहीं सकते. और इमोर्टल है, आप इसको मूवमेंट इसकी नहीं करवा सकते. तो कंपनी क्या है? इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड इमोर्टल आर्टिफिशियल पर्सन, जो तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक आप उसे वाउंड अप नहीं कर देते, वाइंड अप नहीं करते, और जिसकी आइडेंटिटी ओनली लॉ की आइज में होती है. ठीक है, एंड हैज़ एन आइडेंटिटी ओनली इन द आइज ऑफ लॉ. इट हैज़ नो बॉडी, नो सोल एंड सफर्स नो पेन एंड एंजॉयज नो प्लेजर. कंपनी की कोई भी बॉडी नहीं होती, कोई सोल नहीं है, कंपनी कभी कोई पेन को सफ़र नहीं करती और ना ही कोई प्लेजर्स को, कोई जॉय को एंजॉय करती है. ठीक है, बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इट कैन नॉट टेक एन ओथ. अब हम बोल रहे हैं, बार बार वर्ड एक यूज़ कर रहे हैं, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, और आर्टिफिशियल पर्सन होने के नाते
कंपनी कभी भी ओथ नहीं ले सकती, शपथ नहीं ले सकती। कैन नॉट बी इम्प्रिजेंट और पर्सनली अपीयर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, और कंपनी को कभी भी जेल नहीं हो सकती और पर्सनली कभी सुना है कि कंपनी गई है डायरेक्ट, एक वर्ड है कंपनी, कोई कंपनी पर्सन था आर्टिफिशियल, वो उठ के कभी कोर्ट में गया है, नो। इट कैन नॉट गेट मैरिड और बिकम अ प्रोफेशनल लाइक अ डॉक्टर और लॉयर। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन तो है बट इट कैन नॉट गेट मैरिड, इसकी कभी भी मैरिज नहीं हो सकती और कभी प्रोफेशनल नहीं बन सकता है लाइक अ डॉक्टर और लॉयर। Both, but it cannot be treated as a fictional person or a fictitious entity because it really does exist. लेकिन आप इसे fictitious entity नहीं मान सकते क्योंकि इसका reality में क्या है, existence है। Like a natural person, a company can buy and sell properties, make agreements or enter into contracts and employ people on its payroll. एक natural person की तरह कंपनी भी प्रॉपर्टीज़ को सेल परचेज कर सकती है, कोई एग्रीमेंट्स कर सकती है या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है और किसी भी लोगों को, कोई भी लोगों को एम्प्लॉय कर सकती है ऑन इट्स पेरोल, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी पेनलाइज्ड इफ इट डज नॉट अबाइड बाय लॉ। अगर कंपनी लॉ के रूल्स को, लॉ की रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती, प्रोहिबिट करती है, वायलेट करती है, तो उनको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी, पेनलाइज्ड होती है कंपनी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट अ कंपनी दो लाइफलेस एंजॉयज द प्रिविलेजेस ऑफ अ लिविंग पर्सन। हम और शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि कंपनी, हालांकि कंपनी लाइफलेस है, ठीक है, एक नेचुरल पर्सन नहीं है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, स्टिल वो एंजॉय करती है एक लिविंग पर्सन की तरह सारे के सारे प्रिविलेजेस को। थर्ड पॉइंट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मींस कंपनी की और उसके मेंबर्स की दोनों की आइडेंटिटी क्या होती है, सेपरेट होती है। पढ़ते हैं अब इसमें क्या लिखा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी इज दैट इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। एज पर लॉ द कंपनी एक्वायर्स a separate legal entity after it is incorporated, which is distinct from the entity of its members. लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी एक्वायर करता है कब, जब वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है, आफ्टर इट इज इनकॉर्पोरेटेड, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, डिस्टिंक्ट होती है, किससे, फ्रॉम द एंटिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स की एंटिटी से। As a result, a company can enter into a contract with any of its members, और इसके रिजल्ट क्या होते हैं कि कंपनी कभी भी किसी भी पर्सन के साथ, मेंबर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। बाय प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, और अपने नाम पर प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है। बोरो और लेंड मनी, कंपनी कभी भी बोरो कर सकती है मनी को और लेंड कर सकती है, उधार ले भी सकती है और उधार दे भी सकती है। ओपन अ बैंक अकाउंट और फाइल अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी। कंपनी अपने नेम पर बैंक अकाउंट भी ओपन करवा सकती है और किसी थर्ड पार्टी के नेम पर या किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट फाइल भी स्यू कर सकती है कोर्ट में। लाइकवाइज others can also file a suit against the company, और उसी तरह कोई थर्ड पार्टी भी कंपनी के अगेंस्ट फाइल केस कर सकता है या फिर फाइल कर सकता है सूट अगेंस्ट द कंपनी। इन अदर वर्ड्स अ कंपनी कैन डू ऑल सच एक्ट्स विच अ नेचुरल पर्सन वुड डू इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, या फिर हम बोल सकते हैं कंपनी हर तरह की एक्टिविटी करती है जो एक नेचुरल पर्सन करता है इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के कोर्स में। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज परपीचुअल सक्सेशन। बहुत बार वैसे वर्ड यूज कर चुके हैं हम। परपीचुअल सक्सेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी। परपीचुअल सक्सेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है कंपनी के लिए। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स।
कंपनी का एग्जिस्टेंस कभी भी डिपेंड नहीं होता किसके ऊपर, कंपनी के शेयर होल्डर्स के ऊपर या फिर डायरेक्टर्स के ऊपर। द शेयर होल्डर्स और द डायरेक्टर्स माइट चेंज बट द कंपनी गोज ऑन। हालांकि शेयर होल्डर्स या फिर डायरेक्टर्स कंपनी के चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन कंपनी कभी भी नहीं रुकती, कंपनी हमेशा रन करती रहेगी, कंपनी गोज ऑन। डेथ, insolvency or lunacy of its members has no effect on the existence of the company। किसी भी मेंबर की डेथ, इंसॉल्वेंसी और ल्यूनेसी, इन किसी का भी फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किस चीज के ऊपर, एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। Somebody has rightly said about the existence of a company, members may come, members may go, but the company goes on forever। मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स जाते हैं, लेकिन कंपनी हमेशा फॉरएवर रन करती रहती है अपने ऑपरेशंस को। कंपनी कभी भी किसी के लिए भी रुकती नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन सील। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड एज सच इट कैन नॉट पुट इट्स सिग्नेचर ऑन डॉक्यूमेंट्स। हमने वर्ड यूज किया कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, और कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होने के नाते अपने सिग्नेचर किसी भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नहीं कर सकती, राइट। दैट्स वाई इट इज़ मैंडेटरी अंडर लॉ दैट एवरी कंपनी मस्ट हैव अ कॉमन सील विद इट्स नेम इनग्रेव्ड अपॉन इट। इसीलिए ये मैंडेटरी किया गया है, कंपल्सरी किया गया है अंडर लॉ के द्वारा कि हर कंपनी के पास क्या होनी चाहिए, कॉमन सील होनी चाहिए जिसके ऊपर कंपनी का नेम मेंशन हो, इनग्रेव्ड हो। द कॉमन सील इज द सिंबल ऑफ कंपनीज आइडेंटिटी एंड इज एज गुड एज अ सिग्नेचर। कॉमन सील क्या होता है, एक सिंबल है कंपनी की आइडेंटिटी का, और वो इतना ही अच्छा होता है जितना कि एक सिग्नेचर। व्हेन इट पुट्स इट्स सील ऑन अ डॉक्यूमेंट द कंपनी बिकम्स बाउंड बाय द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर कंपनी ने एक बार किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर अपनी सील लगा दी, अपनी कॉमन सील यूज़ कर ली, तो कंपनी क्या हो जाती है, बाउंड हो जाती है जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है उसके लिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अ डॉक्यूमेंट रिटन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बट नॉट बियरिंग द कंपनीज कॉमन सील इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी के बिहाफ पर तो लिखा गया है बट उस पर कंपनी की कॉमन सील नहीं लगी हुई, तो कंपनी उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए बाइंड नहीं होती, राइट। एक बार पढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड अ डॉक्यूमेंट रिटन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बट नॉट बियरिंग द कंपनीज कॉमन सील इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। द पर्सन और persons who have signed such document will be personally held responsible for it। कोई भी ऐसा पर्सन या फिर पर्सन्स जो इन्वॉल्व होते हैं, जिन्होंने साइन किए होते हैं डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, वो पर्सनली भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के लिए, मीन्स उनके अंदर जो भी कंटेंट मेंशन होगा उनके लिए। द लॉज गवर्निंग द यूजेज ऑफ कंपनी सील हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट। ऐसे लॉज जो भी आपको हेल्प करते हैं, गवर्न करते हैं कि कंपनी की सील को कैसे यूज़ करना है, वो कहाँ मेंशन है, कहाँ डिस्क्राइब्ड है, कंपनीज एक्ट के अंदर। एज पर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 नाउ फॉर अ कंपनी टू हैव अ कॉमन सील इज नॉट मैंडेटरी। लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग आजकल कंपनी के लिए कॉमन सील होना कोई मैंडेटरी नहीं होता, कोई कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड। इन केस ऑफ फाइनेंशियल लॉस टू द कंपनी howsoever heavy, the liability of the shareholders is limited to the amount unpaid on their shares, and their personal property cannot be used to pay the company debt. अगर कंपनी को कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, कोई हैवी लॉस होता है, तो
तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड होती है? लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन देयर शेयर्स। जो उनकी अनपेड अमाउंट रह गई है, जो उन्होंने अभी पे नहीं की है, सिर्फ वो उतनी ही अमाउंट के लिए क्या होते हैं? लायबल होते हैं। और देयर पर्सनल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज्ड टू पे द कंपनीज डेट। और कंपनी के डेट को पे करने के लिए कभी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए बाइज 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट ₹10 ईच। अगर एक कोई पर्सन है ए, 100 शेयर्स बाय करता है, 100 शेयर्स परचेज करता है कंपनी के, और एक शेयर का कितना वैल्यू है? 10 रुपीज़। मीन्स हिज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू ₹1000। तो उसकी लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1000 रुपीज़। एंड ही कैन नॉट बी आस्क्ड टू पे मोर देन दैट इन केस द कंपनी सफर्स अ लॉस। तो जब भी कंपनी को कोई फाइनेंशियल लॉस सफ़र करना पड़ेगा या कोई भी फेस करना होगा, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर से, मीन्स जो ए शेयर होल्डर है, उससे 1000 रुपीज़ से एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मंगवा सकती, क्योंकि वो लायबल ही आपका कितने तक के लिए है? 1000 रुपीज़ के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ मेंबर्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी इज 7। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी इज 7। कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए एक पब्लिक कंपनी में? गवर्नमेंट कंपनी में 7। एंड द मैक्सिमम कैन बी एज मच एज द शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? जितने ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी इशू कर सकती है शेयर्स को, उतने। मीन्स हम बोल सकते हैं मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती, राइट? इन अदर वर्ड्स, the maximum number of members in a public company is indefinite and is not specified. सेम वही बात आ गई कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं? इनडेफिनेट, कितने भी हो सकते हैं, कोई स्पेसिफाइड नहीं होता। तो मिनिमम कितने पब्लिक कंपनी में? 7 मेंबर्स, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। नाउ इन अ प्राइवेट कंपनी द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 2 एंड द मैक्सिमम इज 200, excluding members who are or were employees of the company. और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 200। लेकिन इन 200 में वो मेंबर्स नहीं आएंगे जो एट प्रेजेंट और पास्ट में क्या थे? कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे। मीन्स एम्प्लॉयज़ को प्रेजेंट और पास्ट के एक्सक्लूड करके आपके कितने होने चाहिए? 200 मेंबर्स। Next point is representative management. A company is deemed to be an artificial person and imaginary person, and as such it cannot manage its own affairs. कंपनी को एक आर्टिफिशियल और इमेजिनरी पर्सन माना जाता है, जिसके कारण कंपनी अपने अफेयर्स को, अपने ऑपरेशंस को, एक्टिविटीज़ को खुद से मैनेज नहीं कर पाती, राइट? A company is administered and managed by representatives appointed by the shareholders. और कंपनी क्या होती है? उसकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है और जो भी मैनेजमेंट है, वो कौन मैनेज करता है? उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। और वो अपॉइंटेड किसके द्वारा होते हैं? शेयर होल्डर्स के द्वारा। देखो, कंपनी जब भी स्टैब्लिश्ड होती है ना, तो कंपनी क्या करती है? सबसे पहले अपने शेयर्स इशू करती है, राइट? जो भी शेयर्स को परचेज करता है वो क्या बन जाता है? आपके शेयर होल्डर्स। और वही एक्चुअल में क्या होता है? कंपनी के ऑनर्स। अब शेयर होल्डर्स मीन्स कंपनी के जो ऑनर्स हैं वो स्प्रेड होते हैं, क्योंकि बहुत लार्ज इन नंबर है ये। तो वो क्या करते हैं? अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं, जिसे हम जनरली वर्ड यूज़ करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। जो भी रिप्रेजेंटेटिव होती हैं वो शेयर होल्डर के, वो कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जितने भी कंपनी के अफेयर्स होते हैं, कंपनी के ऑपरेशंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कौन परफॉर्म करता है? डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। और वो टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहता है अपने शेयर होल्डर्स को, रिपोर्ट देता रहता है शेयर होल्डर्स को। ठीक है। अ कंपनी इज एडमिनिस्टर्ड एंड मैनेज्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स appointed by the shareholders. The shareholders are too many in number and scattered far and wide.
वही बात आ गई, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर में और वो स्कैटर्ड होते हैं, स्प्रेड होते हैं, विच मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द कंपनी अफेयर टू बी कंट्रोल्ड बाय देम, जिसके कारण ये इम्पॉसिबल होता है कंपनी के अफेयर्स के लिए कि उनको कौन मैनेज करे, शेयर होल्डर्स, क्योंकि वो क्या है, बहुत ज़्यादा नंबर में है और वो स्कैटर्ड है। बिसाइड्स the objective of the shareholder is to make a profit, not to run the company's business. और शेयर होल्डर का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट्स को अर्न करना, ठीक है, प्रॉफिट्स कमाना, ना कि कंपनी के बिजनेस को रन करना। कंपनी के बिजनेस रन कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, विच दे आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मीन्स कंपनी के शेयर्स कैसे होते हैं, ट्रांसफरेबल इन नेचर। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज मेड अप ऑफ शेयर्स ऑफ अ डेफिनेट वैल्यू एंड इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इट्स शेयर होल्डर्स। जो कंपनी की कैपिटल होती है वो कैसे बनती है, मेड अप ऑफ शेयर्स ऑफ अ डेफिनेट वैल्यू, डेफिनेट वैल्यू की शेयर्स से ही कंपनी की कैपिटल बनती है, और वो कौन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इट्स शेयर होल्डर्स। According to Section 44 of the Companies Act 2013, the shares or debentures or other interest of any member in a company shall be movable property, transferable in the manner provided by the articles of the company. Section 44 Companies Act 2013 के अकॉर्डिंग जो भी शेयर्स, डिबेंचर्स या फिर अदर इंटरेस्ट होता है मेंबर का, ठीक है, कंपनी के अंदर, वो कैसा होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, मींस ट्रांसफरेबल है, और इस तरह से ट्रांसफरेबल की जाती है जो भी आपका मैनर डिस्क्राइब्ड होगा आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी के अकॉर्डिंग, मींस आर्टिकल में जैसा भी मैनर डिस्क्राइब्ड है उसके द्वारा ही, उसको फॉलो करते हुए ही आप क्या करते हो, उन्हें ट्रांसफर करते हो। सो ईच शेयर होल्डर कैन फ्रीली ट्रांसफर हिज और हर शेयर्स, तो इसलिए हर शेयर होल्डर अपने जो भी शेयर्स होते हैं उनको क्या कर सकते हो, इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। बट इन सम स्पेसिफिक सिचुएशंस द कंपनी में इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस के अंदर कंपनी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, किसके ऊपर, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मीन्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, या फिर कुछ जो भी आपकी रिस्ट्रिक्शंस होंगी कंपनी की। नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। ये पॉइंट रिलेटेड है जो हमने अभी पढ़ा था रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट से, कुछ सिमिलर पॉइंट है, पढ़ते हैं एक बार। सिंस द नंबर ऑफ ऑनर्स एंड शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी बिजनेस इज लार्ज एंड दे आर स्प्रेड टू डिस्टेंट प्लेसेस, क्या होता है, जो नंबर ऑफ ऑनर्स हैं, मीन्स शेयर होल्डर्स हैं जो कंपनी के, वो क्या है, बहुत लार्ज है नंबर में, और वो स्प्रेड होते हैं अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पर, मीन्स एक ही जगह पर कभी वो नहीं रहते। दे कैन नॉट इंटरफेयर इन द डे टू डे रूटीन ऑफ द कंपनी, अब हर शेयर होल्डर अलग अलग प्लेस पर रहता है, जिसके कारण वो डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ जो होती हैं कंपनी की उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाता। देयरफॉर इन ऑर्डर टू रन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर कॉल्ड डायरेक्टर्स, इसीलिए अपने कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी की एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए स्मूथली मैनर में, एक एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में रन करने के लिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। कौन इलेक्ट करता है, शेयर होल्डर्स, ऑनर्स, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, डायरेक्टर्स, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बोलते हो, राइट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज नॉन एज द मैनेजिंग बॉडी विच मैनेजेस द कंपनीज बिजनेस, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या हम बोलते हैं, मैनेजिंग बॉडी, क्योंकि जो भी कंपनी के अफेयर्स होते हैं वो मैनेज कौन कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दैट्स व्हाई दे आर नॉन एज मैनेजिंग बॉडी। दस द मैनेजमेंट मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द ओनरशिप मीन्स शेयर होल्डर्स आर सेपरेट इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए बोला जाता है जो मैनेजमेंट है, मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर जो ऑनरशिप है मीन्स शेयर होल्डर्स, वो क्या है, सेपरेट होते हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
Next point is risk bearing. In the sole trade, all the risks have to be borne by a single individual, while in a partnership, only few individuals face the risk. देखो, सोल ट्रेड में क्या होता है, एक इंडिविजुअल है, सारे के सारे जो भी आपकी मैनेजमेंट है, अफेयर्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, सब कौन परफॉर्म करता है या कौन मैनेज करता है, सिंगल पर्सन, मीन्स सोल प्रोपराइटर, जो भी आपका ऑनर होगा। तो जो रिस्क होंगे एसोसिएटेड सोल ट्रेड से, वो भी तो अकेला ही बियर करेगा। तो यही लिखा है, ऑल द रिस्क हैव टू बी बॉर्न बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ पार्टनर्स होते हैं, जो कि कुछ इंडिविजुअल्स फेस करते हैं रिस्क को। कंपेयर करेगा सोल ट्रेड से तो पार्टनरशिप बेस्ट है, लेकिन पार्टनरशिप में भी कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स ही हैं जो फेस करते हैं, मीन्स पार्टनर्स आपके क्या होते हैं, लिमिटेड। तो हर पार्टनर के ऊपर एक बर्डन क्रिएट रहता है रिस्क का, ठीक है। इन केस ऑफ अ कंपनी, द रिस्क गेट्स डिवाइडेड अमंग न्यूमरस शेयर होल्डर्स एंड नोबडी फील्स द बर्डन। लेकिन अगर हम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो रिस्क डिवाइड हो जाता है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं और कोई भी बर्डन फील नहीं करता, एंड नोबडी फील्स द बर्डन। दैट्स वाई a company does not hesitate to undertake more risky ventures. इसीलिए कंपनी कभी भी हिचकिचाती नहीं है मोर रिस्की वेंचर्स को लेने के लिए, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अब मोर रिस्की वेंचर्स मीन्स मोर रिस्की प्रोजेक्ट्स। वेयर देयर इज मोर रिस्क, तो अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रॉफिट्स आर मोर। जहाँ पर भी रिस्क ज़्यादा एसोसिएट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के साथ, उसमें अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रॉफिट्स क्या होती हैं, ज़्यादा, उतना ही प्रॉफिट्स को अर्न करने की अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा होती हैं वहाँ पे। देयरफॉर अ कंपनी हैज़ द कैपेबिलिटी टू अंडरटेक मोर रिस्की वेंचर्स एंड इट्स प्रॉफिट गोज टू इट्स मेंबर्स एंड द सोसाइटी। इसीलिए कंपनी के हम बोलते हैं कि कंपनी के पास क्या होती है, कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो मोर रिस्की वेंचर्स को, मोर रिस्की प्रोजेक्ट्स को ले सके, उसमें इन्वेस्ट कर सके और प्रॉफिट अर्न करता है। और जो प्रॉफिट अर्न किया वो किसके पास जाता है, मेंबर्स के पास एंड द सोसाइटी के पास, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। लाइक इट बॉर्न बाय एन एक्ट ऑफ लॉ, अ कंपनी में ऑल्सो बी टर्मिनेटेड बाय लॉ। जिस तरह से हम बोलते हैं कि एक कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्रिएटेड है बाय द लॉ, जैसे कंपनी का जन्म भी लॉ के द्वारा होता है, सिमिलरली अगर कंपनी को टर्मिनेट करना है वो भी कैसे होगा, लॉ के द्वारा, ऑल्सो बी टर्मिनेटेड बाय लॉ। लास्ट पॉइंट इज कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन तो है, लेकिन कंपनी सिटीजन नहीं है। अब पर्सन होने में और सिटीजन होने में क्या डिफरेंस है, देखो, जब भी कोई पर्सन एक सिटीजन होता है किसी कंट्री का, तो उसके पास बेसिक फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं जो कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होते हैं, ठीक है। अगर आप सिटीजन नहीं हो किसी भी कंट्री के, देन यू विल नॉट अवेल द फंडामेंटल राइट्स लाइक अ सिटीजन हैज। चलो एक बार पढ़ते हैं क्या लिखे हैं। विदाउट एनी डाउट अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन और अ एंटिटी, बट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नॉट अ सिटीजन। देखो, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है हमें कि कंपनी क्या है, लीगल पर्सन है और एक एंटिटी है, लेकिन आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोला गया है कंपनी सिटीजन नहीं है, ठीक है। इट हैज नो फंडामेंटल राइट्स, कंपनी के पास कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं है लाइक अ सिटीजन हैज, ठीक है, जैसे एक सिटीजन के पास होते हैं। As such, a company cannot take the recourses of law to press for its fundamental rights like a citizen can. कंपनी कभी भी लॉ के पास, कोर्ट के पास नहीं जा सकती अपने फंडामेंटल राइट्स को अवेल करने के लिए जैसे एक सिटीजन के पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी डज नॉट हैव द राइट टू फ्रेंचाइज। कंपनी के पास राइट नहीं होता टू फ्रेंचाइज, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने आज क्या किया है। We have started with the topic introduction,
जिसमें बोला गया था कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट हुआ था। क्यों? ताकि सोल ट्रेड के जो भी लिमिटेशंस थे उनको क्या कर सको, आप एलिमिनेट कर सको, रिमूव कर सको। सिमिलर मैनर में कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी बर्थ हुआ। क्यों? ताकि जो भी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेशंस थी उनको क्या करा जा सके, एलिमिनेट किया जा सके। ठीक है, फिर हमने कुछ इसमें पॉइंट्स पढ़े थे कि लाइक कंपनी की लायबिलिटी कैसी होती है, मेंबर्स की, लिमिटेड मेंबर्स की होती है, कंपनी स्टेबल होती है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करती है या फिर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन का काम करती है फॉर द एक्सपीरियंस्ड एंड एफिशिएंट मैनेजर्स का। और जो भी लिमिटेशंस सोल ट्रेड या पार्टनरशिप फर्म फेस कर रही थी वो रिमूव हो जाती हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के आने के बाद। ठीक है, देन हमने क्या किया, मीनिंग ऑफ अ कंपनी। मीनिंग में क्या था, कंपनी एक ऐसा फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो कि विलिंगली इस्टेब्लिश्ड किया गया है कुछ पर्सन्स के द्वारा, जिनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग। राइट, कंपनी को आप जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से भी जानते हो। और लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, लायबिलिटी और जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड। कंपनी स्टेबल होती है, मींस मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। और कंपनी के पास जो भी कंपनी के जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं वो कैसे रन किए गए हैं, कंपनी की कॉमन सील के थ्रू। क्रक्स में कंपनी का मीनिंग गिवन है आपको, एक बार यहाँ से रीड कर लोगे तो सारी फीचर्स और एक मीनिंग क्रक्स में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो, कंपनी इज दैट ग्रुप ऑफ पीपल विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट हुज क्रिएशन is due to a special purpose. The liability of the members is generally limited, whose existence is separate from its members and is a continuous and perpetual and which has common seal. After that we have done a definition of two authors. Then characteristics of a company. We have done 13 characteristics in total. First one is incorporated association. सेकेंड, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा गया है, बिकॉज इट्स बर्थ इज नॉट अ नेचुरल। ठीक है, बिकॉज इट्स बर्थ इज नॉट अ नेचुरल बर्थ, इट इज इनविजिबल। कंपनी इज इनविजिबल, इंटैंजिबल एंड इमोर्टल आर्टिफिशियल पर्सन एंड कंपनी हैज द आइडेंटिटी ओनली इन द आईज ऑफ लॉ। कंपनी की आइडेंटिटी सिर्फ लॉ के आईज में होती है, लॉ की नजरों में है। कंपनी की कोई बॉडी नहीं होती, कोई सोल नहीं है, कंपनी कोई भी पेन को सफ़र नहीं करता या फिर कोई भी प्लेजर्स को सफ़र या इंजॉय नहीं करता। थर्ड हमने किया सेपरेट लीगल एंटिटी, मींस कंपनी के और कंपनी के मेंबर्स की दोनों की आइडेंटिटी क्या है, सेपरेट होती है। कंपनी अपने बिहाफ पर भी हर एक्टिविटी कर सकती है, लाइक दे कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद इट्स मेंबर्स, buy property in its name, borrow or lend money, open a bank account, or file a suit in a court of law against a third party. Similarly, others can also file a suit against the company. ठीक है, next point we have done perpetual succession, which means members may come, members may go, but the company goes on forever. कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, चाहे कोई शेयर होल्डर आए, कोई मेंबर आए या फिर किसी की डेथ हो, इंसॉल्वेंसी हो, ल्यूनेंसी हो, इनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता कंपनी की एग्जिस्टेंस के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव डन कॉमन सील, मींस कॉमन सील क्या है, कॉमन सील इज द सिंबल ऑफ कंपनीज आइडेंटिटी जो कि एज गुड एज सिग्नेचर। और जब कंपनी अपनी कॉमन सील किसी डॉक्यूमेंट पे लगा देती है then the company becomes bound by the contents of the company. लेकिन हमने पढ़ा था any document written on the behalf of a company but not bearing the company's common seal is not binding on the company. अगर कंपनी के बिहाफ पर कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा गया है लेकिन उस पर कंपनी की कॉमन सील नहीं लगी तो कंपनी उस डॉक्यूमेंट में लिखे गए कंटेंट के लिए बाइंड नहीं होती। नेक्स्ट वी हैव डन लिमिटेड लायबिलिटी, means the liability of the shareholder is limited to the amount unpaid on their shares, means
their personal property cannot be used to pay the company's debt. Next, we have done number of members. The minimum number of members in a public company is 7 and the maximum is no limit, indefinite, and is not specified. But in case of a private company, the minimum number of members is 2 and the maximum number of members is 200, excluding the members who are or were employees of the company. Next, we have done representative management, means being an artificial person or imaginary person, company cannot manage its own affairs, right? Company is administered and managed by representatives appointed by the shareholders, who generally known as directors or board of directors. Next, transferability of shares, मीन्स कंपनी के शेयर्स को आप क्या कर सकते हो, इजीली ट्रांसफर कर सकते हो. ये कैसे है, मूवेबल इन नेचर है. नेक्स्ट वी हैव डन सेपरेशन एंड ऑनरशिप ऑफ मैनेजमेंट. कंपनी की ऑनरशिप और कंपनी की मैनेजमेंट दोनों क्या है, सेपरेट है. ऑनरशिप कौन रन कर रहा है, मतलब ऑनर्स कौन होते हैं, आपके शेयर होल्डर्स, और उनको बिजनेस को जो भी मैनेज करने वाले कौन होते हैं, आपके डायरेक्टर्स. मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑनरशिप शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट वी हैव डन रिस्क बियरिंग. कंपनी में क्या होता है, रिस्क डिवाइड हो जाता है अमंग द न्यूमरस शेयर होल्डर्स एंड नोबडी फील्स द बर्डन. ठीक है, जिसके कारण कंपनी क्या करती है, बड़े बड़े या फिर हम बोल सकते हैं रिस्की वेंचर्स में, रिस्की प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट अपनी करेगी. मीन्स company does not hesitate to undertake more risky ventures. Next we have done termination of existence. जैसे कंपनी का बर्थ लॉ के द्वारा होता है, सिमिलरली कंपनी का जो टर्मिनेशन है वो भी कैसे होगा, लॉ के द्वारा. एंड द लास्ट वन इज कंपनी इज नॉट अ सिटीजन. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इमेजिनरी पर्सन है, नो डाउट, बट आर्टिकल 19 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कंपनी सिटीजन नहीं है. इट हैज नो फंडामेंटल राइट्स लाइक अ सिटीजन हैज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स and have a wonderful day, and do like and share the video, and don't forget to subscribe the channel for the notification of latest upcoming videos.